So good evening to everybody. Okay. Before we start about the things, let us discuss the how we will do or what is the requirement of the things. Obviously, uh, we need to discuss the things as well. It should be a reciprocating thing for us. So, आप लोग बताओ. First of all, let me know that is what is the idea you have about this paper. Then we can answer one by one about the things. कुछ भी आइडिया दो आपको. That is, you must have gone. मैंने तो देखा किसी किसी के पास क्वेश्चन पेपर भी है. Might be that is having the recent 23 paper or 2022 paper. कोई idea, anything? Okay. So first of all, I actually give you the idea. That is, what are the things is there. You might be knowing it. You have. That is the quantitative aptitude part you have over here. It is what is the difference between the mathematics and the quantitative aptitude. Mathematics, when we say, that is कि उसपे क्या होता है, formula होता है ना. Mathematics meaning is what? The formula is there, but this is not any mathematics. It is the quantitative aptitude things. Aptitude meaning is that is logically also you can solve the things. Most of the time you have to use your logic to find out the things. It is not that you will apply straightway formula and get the answer, which will not be possible for us in our examination. Now, in this quantitative aptitude, you have various things. For example, you have the arithmetic. You have the arithmetic. What is the meaning? What is the topics we have for the arithmetic? क्या क्या टॉपिक है अरिथमेटिक पे? एनी आइडिया? किसको बोलते हैं हम लोग? दैट इज व्हाट विच पार्ट ऑफ द it is up till 10th standard, but there are few topics which is beyond the 10th standard. So there are certain topics we say arithmetic. Then there are certain topics we say it is in the algebra portion. Then there are certain topics we say it is in the geometry, है ना? So can you tell me which are the topics we have in the arithmetic? कोई भी, मतलब you must have heard about the topics such as the average, है ना? एवरेज के बारे में आपने सुना ही होगा. देन आपने सुना होगा दैट इज द परसेंटेज, टॉपिक परसेंटेज, ये सारे. देन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस. Then you must have heard about, very good, that is the ratio and proportion. No, that doesn't comes under the arithmetic. When you say about the progression, that is AP or GP, that doesn't comes under the arithmetic. Okay. Ratio, proportion you must have. Then you must have heard about this simple interest and compound interest. है ना? Then you must have heard about the time and work. Then you must have heard about the time, speed and distance. So there are subparts as well under this. If we talk about the ratio proportion, so ratio proportion में भी कुछ subparts भी है. That also the overall it is the topic of the ratio proportion. So this TSD, if we say time, speed and distance, so there are other subtopics we have for the time, speed and distance. For example, in the subtopic of the time, speed and distance, we have linear and circular races. For example, I am giving you. Then under the subtopic of the TSD, we have the clocks. So these are all the subtopic, but overall it is known as the time, speed and distance. So this is the part is the arithmetic. Then we have the part as the, that is, this is the, we are dealing with only the QA. Then we have the algebra. Can you tell that is few of the topics about the algebra? That is the first thing we say about the algebra is the linear equation and the quadratic equation. Clear? This is the first topic. Linear equation का मतलब हो गया जैसे आपने सुने होंगे x equal to 2, x equal to 3 bar, 2x plus 3y equal to 6. These are the equations are known as the linear equation. तो आपका जैसा हुआ था, that is in the school days you must have done linear equation in one variable, linear equation in two variables, है ना?
लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स बहुत ने कम किया होगा। इफ यू हैव डन टिल 10 तो आपको मतलब देखा नहीं होगा 3 वेरिएबल्स का, लेकिन वो कोई डिफिकल्ट नहीं है चीजें, इट इज लॉजिकली वी नीड टू सॉल्व दोज थिंग्स, वी विल डिस्कस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आफ्टर लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? जैसा आपने बोला एपीजीपी, है ना, इसको बोला जाता है, एपी को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी को बोला जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एपी तो सब नहीं किया होगा, ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द 10th स्टैंडर्ड यू हैव द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी ने किसी किसी ने किया होगा, some of you might not have done the GP, but it is similar, it is not that difficult because they don't ask you in the mathematical terms. Then सीरीज यही होगी आपका एपीजीपी। पॉलिनोमियल इज ऑल्सो दैट इज द लीनियर एंड द क्वाड्रेटिक, सारे उसी पे मतलब ऑल अंडर कम्स अंडर द सब टॉपिक। मीन मीडियन मोड तो स्टैट का होता है, तो मीन तो है ही, एवरेज इज सिमिलर टू द मीन, और आपका अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो वी विल डू इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो तो सारे सब टॉपिक हो गया एक तरह से, टॉपिक वाइज अगर देखा जाए। सेट थ्योरी एवरीबडी हैजंट डन बिकॉज इट इज अ प्योरली, ये जो टॉपिक है जीपी और सेट थ्योरी, ये दोनों टॉपिक है आपका प्योरली बेस्ड ऑन द 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि दैट इज वी हैव टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला अगेन, दैट इज व्हेन दे आर आस्किंग यू इन दिस एग्जामिनेशन, दे आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ यू नीड टू सॉल्व इट लॉजिकली, ठीक है। तो आपका ये फोकस नहीं होनी चाहिए पूरी क्लास पे, दैट इज यू हैव टू लर्न सम फॉर्मूला एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ओवर देयर, which is practically not possible for us in this paper. Next हो गया क्या? Next आपने सुना होगा, that is those who have done these topics, that is the permutation combination, है ना, PNC जिसे हम लोग बोलते हैं। Next we have the probability, है ना। ये सारी these are the, when we are talking about these topics, तो ये क्या हो गया, सारी मतलब 11th की टॉपिक है। Probability also some of you must have done in the 10th standard, क्योंकि 10th standard तो उसकी introductions तो है ही, that is the introduction is there in case of a probability। तो उतना ही जितना इंट्रोडक्शन है उसी का ही मतलब थोड़ी सी ज्यादा करना होता है, थोड़ी सी, ऐसा कोई ज्यादा थ्योरम बेस्ड नहीं है। तो अरिथमेटिक अलजेब्रा हो गया। देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट एज द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो 10th स्टैंडर्ड तक सभी ने किया होगा, एवरीबडी हैज डन ज्योमेट्री टिल 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि उसके बाद तो ज्योमेट्री होता ही नहीं है। आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड यू डोंट हैव द ज्योमेट्री, आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड इट स्टार्ट विद द ज्योमेट्री की जगह क्या आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। आपने सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्री भी आपने 10th पे किया होगा, लेकिन उसके बाद वो प्योर फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हमें नहीं चाहिए बिकॉज दे डोंट आस्क यू, दीज आर द नॉट द टॉपिक। तो ज्योमेट्री में जैसा होगी आपका लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स, ये हो गया। देन हो गया आपका 2D। 2D किसे बोलते हैं हम लोग? 2D बोलते हैं जैसा स्क्वायर है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, दीस हो गया। देन सर्कल हो गया आपका, सर्कल्स हो गया। देन हो गया 3D। 3D जैसा ये वाला, दिस रूम वी हैव, तो इट इज लाइक अ क्यूबॉइड, तो 3 डायमेंशनल फिगर वी से, जिस पे भी हाइट हो जाएगा, वेरेवर द हाइट विल बी देयर। जैसा फॉर एग्जांपल 3D वी हैव द क्यूबॉइड, cube, then we have cylinder, cone, sphere, sphere is a football, hemisphere is a ball. These are the 3D we have. So these are the geometry we have. Then next we have is the data sufficiency, जिसको हम लोग short form में we are writing as the DS, and then we have the data interpretation. Combining these two we write it. That is the data sufficiency and the DI. Data sufficiency is a very important part, क्योंकि आज के डेट पे अगर आपने, इफ यू हैव गॉन थ्रू द पेपर, तो वो देते हैं क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन विल बी गिवन, द इवन द सॉल्यूशन विल बी गिवन टू यू, ओनली आइडिया इज वेदर यू कैन फाइंड आउट विद दो स्टेटमेंट और नॉट। तो आपने अगर देखा होगा पेपर में, दिस हैज बीन डन फ्रीक्वेंटली, दे हैव बीन आस्किंग यू फॉर द 2020 onwards during the COVID. We can solve the question by using statement 1, but statement 2, but दोनों चाहिए, but दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए। तो those are known as the data sufficiency. Data interpretation जैसा आपने किया होगा 10th स्टैंडर्ड पे, बार चार्ट, टेबल चार्ट, then pie chart, है ना, these are the known as the data interpretation.
Then lastly you is the left out is the that is the logical reasoning plus the verbal ability, है ना, यही होता है. These are the things you have in the paper. तो LR पे जैसा the part you have कैसा जैसा relation है ना, रिलेशंस मतलब ब्लड रिलेशन, रिलेशन का मतलब तो दूसरा भी हो जाता है इन 11th 12th यू हैव. तो ब्लड रिलेशन हो गया, जैसा आपका डायरेक्शंस हो गया, डायरेक्शन यू हैव दिस टॉपिक. तो दीज आर द टॉपिक यू हैव इन द लॉजिकल रीजनिंग. डेटा अरेंजमेंट व्हिच इज अ वेरी important part in the logical reasoning. Then verbal ability we have. So these are the topics you have. Now the idea is if you say that is if you must have gone through the paper, आपने देखा हुआ है पेपर, और दिस इज द यू हैवंट सीन द पेपर येट. हाँ सॉरी ये तो अलजेब्रा पे आएगा. नंबर सिस्टम एंड द एचसीएफ एलसीएम विल कम इन द अलजेब्रा पार्ट. हाँ वही नंबर सिस्टम का ही सब पार्ट है, एलसीएम एंड द एचसीएफ. सॉरी वो तो लिख दिया मैंने, पीएनसी है वो सारे उसी पे है, नंबर सिस्टम पे ही है वो सब पार्ट. यू आर टेलिंग अबाउट द सब पार्ट. ठीक है. द आइडिया इज नॉट दैट. द आइडिया इज इफ यू हैव गॉन थ्रू द पेपर, और इफ यू हैवंट गॉन थ्रू द पेपर तो आपको थोड़े बहुत तो मार्केट का रिव्यू तो पता ही होगा. व्हाट इज दिस पेपर इज ऑल अबाउट, आपको कितना स्कोर करना है ना, कितना स्कोर करना है. और पेपर इज इजी और डिफिकल्ट और मॉडरेट है. मॉडरेट टाइम तो कांस्टेंट है ही नहीं, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड यू डोंट हैव टू डू द 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 2 आवर्स. तो टाइम तो कभी इस पे बाउंडेशंस है ही नहीं है. यू हैव टू ओनली क्वालिफाई फॉर दिस पेपर. तो टाइम तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस इन दिस पेपर. बट स्टिल ऐसा क्या है, मतलब आई मीन टू आस्क दैट इज ऐसा क्या है जो पीपल आर स्टिल अनएबल टू क्वालिफाई पेपर होने के बाद भी, in spite of the fact it is a qualifying paper, but still students are not able to qualify. Even some of the students you must have heard, they are qualifying around the borderline. Borderline मतलब हो गया 60 61, जबकि आपको मिलना चाहिए 66 67, है ना. तो चाहे 1 मार्क्स का भी शॉर्टेज है, शॉर्टेज तो शॉर्टेज ही होगा. they will not give you anything grace about it. तो क्यों है ऐसा, what is the problem, और व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट, कि ऐसा क्यों आ रहा है चीजें. है तो टॉपिक सारे देखा जाए तो ये सारे 10th स्टैंडर्ड का है, आपने बहुत बार किया होगा ये सारे चीजें. दिस इज ऑल्सो 10th स्टैंडर्ड एक्सेप्ट दीज 3, है ना, 1 2 3. जीपीबी बहुतों ने किया होगा, बट दीज 3. नंबर सिस्टम आपने 4th 5th स्टैंडर्ड से किया होगा. रियल नंबर्स जिसे बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स किसे बोलते हैं, है ना. These are the topics you must have done from the 4th 5th standard. ये तो आपने किया ही होगा बहुत बार till 10th standard. Lines, angles, triangles. कितना type of triangles होता है? How many types of the triangles we have? कितना होता है? How many types of the triangles we have? 3 की 6 types. 6 types होता है. ठीक है. वो सीखेंगे, वी विल लर्न अबाउट इट. और छोटा छोटा चीजें मैं अभी बता रहा हूं आपको. फिर भी व्हाई द पेपर वी आर अनएबल टू क्वालिफाई फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव. कैसे, मतलब विच पार्ट यू फाइंड इट, हैव यू सीन द पेपर, किस पार्ट पे आपको डिफिकल्टी लगा है. नंबर सिस्टम पे जेन्युइन. ठीक है, नंबर सिस्टम पे तो कितना क्वेश्चन आया था आपके हिसाब से नंबर सिस्टम पे है? 12. तो मान के चलते कि उस पे से 6 तो कर ही लेते हम लोग. नहीं, 6 भी नहीं हो पाएगा. पेपर का पैटर्न तो सेम है, थोड़ी बहुत पैटर्न इज द व्हाट दे आर डूइंग. आई टेल यू, इफ यू सी 23 पेपर, तो 23 से 24 पे क्या होगा, 5-7% का चेंजेस तो आएगा. मिनिमम 5% यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट द चेंज विल बी देयर. तो बट एकदम से वो पैटर्न नहीं बदलते हैं. वो जो भी देखना, basically you will get the idea how the paper is given. It is from 2020 onwards,
है ना। 2020 ऑनवर्ड से इट इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इज टेकिंग प्लेस। एकदम से ये नहीं कि आज मन किया तो 23 का एकदम से डिफिकल्ट देंगे, 22 का, ऐसा नहीं है। इट हैज टेकन अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस इज हैज टेकन अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो बट देखा जाए तो क्या डिफिकल्टी क्या हो रहा था, मुझे ये वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इस पे मान लेते हैं, पूरी टॉपिक पे अगर मान लेते हैं, हमें 15 to 20 का क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, अलजेब्रा पे, मान के चलते हैं। तो मानो 20 क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, मान के चलते 20 क्वेश्चन छोड़ दिया, तब भी कितना बचता है? 60 बचता है। 60 स्टिल लेफ्ट आउट, तब भी तो 40 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा 60 पे से, नहीं हो रहा है। क्वांट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसमें टाइम कभी ज्यादा होता है या फिर कभी क्वांट के इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, तो अलोकेशन ऑफ टाइम बिटवीन द टू, या फिर किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, कभी एक सम सॉल्व करके उसका आंसर ही गलत आ जाता है। वो तो गलत तो वो तो आएगा ही चीजों का, बिकॉज एवरी क्वेश्चन यू कैन नॉट फाइंड इट करेक्ट ओवर देयर बिकॉज ऑफ द टाइम प्रेशर। तो होता ही है थोड़ा बहुत, और एग्जाम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस प्रेशर, ये एग्जाम तो थोड़ा सा होता ही है, प्रेशर तो बिल्डअप होता ही है धीरे धीरे का, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन को किए, आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, ठीक है, वो आपने सॉल्व किया, आंसर फाइंड आउट किए, और आपने देखा चारों में से कोई ऑप्शन है नहीं उस पे से, तो आपका वहीं पे क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन करने में आपको और कॉन्फिडेंस वो हो जाता है। तो वो तो होता ही है, दैट इज अ जनरल, दैट इज फॉर एनी एग्जाम। इवन इफ यू अपेयर्ड फॉर द 10th स्टैंडर्ड तो वो ऐसे ही था, और 12th पे भी ऐसे ही था, ग्रेजुएशन में भी ऐसे ही है, और यहाँ पे तो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि परसेंटेज बहुत ज्यादा है कि सक्सेस का बहुत कम है, और परसेंटेज ऑफ एरर का ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर मैंने गलती किया, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने गलत कर दिया, तो मेरा कितना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा है? नहीं, 0.83 नहीं होगा, 2.5 मार्क्स तो गया ही गया, 2.5 मार्क्स यू लॉस्ट। ऐसा होता है, लेकिन आपके 0.833 कब हुआ? जब आपने अटेम्प्ट किया, तो और अल्टीमेटली पूरी नेगेटिव कितने का गया? 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये है आइडिया बेसिकली, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू लर्न इन द क्लास, कि मेरा नेगेटिव कितना हो रहा है ना। वो थोड़ी तो कैलकुलेशन आपको भी सीखना होगा, ठीक है। तो मैंने बोलता हूं कि चलो ये फिर भी पेपर क्यों नहीं हो पाया, बाकी तो क्यूए सही है, क्यूए तो सिंपल होता है, एवरेज किसको नहीं पता होता है। दूसरा टेक्निक काफी यूज करने का, मतलब अभी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप बहुत सारे फॉर्मूले थे, मतलब टेक्निक से दो तीन, तो फिर ये सब कौन सा टेक्निक यूज करके सॉल्व करना हम तो एक ही को उस पे कर देंगे, को आप कोई भी साल का पेपर निकाल लो, एक ही चीज पता है कि प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा। एग्जांपल दिया कि पेपर में और समझ में नहीं आया। नहीं, दिस इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन, तो यू शुड ऑल्सो इन्वॉल्व योर सेल्फ कि व्हाट इज द डिफिकल्टी ही इज फेसिंग। हाँ, तो एक जेन्युइन है कि उन व्हाट ही इज टेलिंग कि टेक्निक है, तो मेरे लिए तो कोई टेक्निक है नहीं। मेरे पास तो एवरेज का एक ही डेफिनेशन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे मेरा सारे क्वेश्चन हो जाता है एक एक दो दो लाइन में। आप कोई भी साल का उठा के ले आओ, तो मेरे लिए तो कोई टेक्निक है नहीं। नीदर आई नो एनी फॉर्मूला, मच ऑफ द फॉर्मूला, नीदर आई नो एनी शॉर्टकट फॉर एनी ऑफ द टॉपिक, फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू द थिंग्स आई डोंट नो। हाँ, फिर उसमें एवरेज यूज करना है या प्रॉफिट एंड लॉस यूज करना है, वो समझ नहीं आता कभी। हाँ, ये एक जेन्युइन सा प्रॉब्लम होता है एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, कि टॉपिक वैसा नहीं होता है कि आप क्वेश्चन को ऐसा समझेंगे कि देख के आपको लगेगा कि वो टीएसडी का है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, कि क्लॉक का है। आपको इसी पे मतलब आप यू विल नॉट एबल टू, दैट इज द क्लैरिफिकेशन इज द रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल 2022 पे उन्होंने एक पूछा था अबाउट द डायरेक्शन का क्वेश्चन, एलआर की क्वेश्चन बोल रहा हूं, जिन्होंने दे रखा होगा 2022, और यू हैव गिवन द पेपर, और ऑब्वियसली वी विल डू इन द क्लास एज वेल द क्वेश्चन। तो उसपे क्या था, लास्ट पे जाके थोड़ा बहुत 10th का ट्रिग्नोमेट्री यूज करना ही था, बिना उसका हो नहीं रहा था, ऑल्दो वी डोंट डू ट्रिग्नोमेट्री इन द क्लास, है ना। तो ये सब तो चेंजेस आते रहेगा, ये तो मैं तो बोला है 5-7% का तो चेंजेस हमेशा ही आते रहेगा।
ये तो you cannot expect the same pattern, whatever is the pattern they have followed in 2023, तो you cannot expect the same pattern in 2024. ये तो होगा नहीं, ये तो guaranteed है ना. और आपकी जो लेवल ऑफ इफ यू से दैट इज द लेवल विल चेंज, इट विल नॉट बी -5%, इट विल बी +5%. मतलब थोड़ा बहुत तो होगा ही चीजों का चेंजेस इन डिफिकल्टी स्टैंडर्ड. बट फिर भी डिफिकल्टी किस रेस्पेक्ट पे, इफ यू से है मुझे कैलकुलेशंस, तो ये पेपर में कैलकुलेशन है क्या, है कितना परसेंटेज है, इतना ही लगता है 20% के आसपास कैलकुलेशन होगा इस पेपर पे. आपको लग रहा होगा फिर क्यूए का टॉपिक बिना कैलकुलेशंस का कैसे होता है, तो वो तो कैलकुलेशन आप इस रेस्पेक्ट पे बोल रहे हो, यू आर टेलिंग इन दैट रेस्पेक्ट कि जहां पे आपको एक एक फॉर्मूला एक एक चीज को अप्लाई करके करना होता है. यहां पे वैसा नहीं करना होता है कि एक चीज को फॉर्मूला इंसर्टिंग द फॉर्मूला देन फाइंडिंग आउट, वैसा नहीं. ठीक है, कैलकुलेशन इज नॉट अ हिंड्रेंस और अ प्रॉब्लम फॉर दिस पेपर. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक जेन्युइनली यू टेल दैट इज द कैलकुलेशन इज अ प्रॉब्लम फॉर दिस पेपर. बाकी एग्जाम का तो अलग अलग सबकी वो है, that is the requirement. Every exam has a different requirement. तो इस एग्जाम में that is I personally feel when we go through the papers, that is calculation is never a problem for us. आप मानते हो कि आपने देखा हुआ है, तब जब आपने देखे होंगे एनालिसिस किए होंगे तभी आपको पता चलेगा कि कैलकुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस पेपर. हाँ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन चाहिए, वो हम लोग मैनेज कर लेते हैं. इतना भी नहीं है कि कोई एकदम आपको कोई मतलब डेसिमल में कैलकुलेशन नहीं पूछेगा कोई भी चीजों का. तो कैलकुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस इन दिस पेपर. तो सेकंड क्या हो गया, इट इज द लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना. और लैंग्वेज का मतलब ये नहीं बोल रहे हो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लैंग्वेज, इट डजंट मींस दे आर यूजिंग द वेरी हाई फंडामेंटल वर्ड्स, है ना. ये नहीं करते वो, दे डोंट यूज द हाई फंडामेंटल वर्ड्स, दे यूज अ वेरी सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज. ऑब्वियसली योर इंटरप्रिटेशन विल चेंज विथ माई इंटरप्रिटेशन. इफ यू डोंट रीड केयरफुली तो आपकी इंटरप्रिटेशन और मेरी इंटरप्रिटेशन में चेंज हो जाएगा. क्योंकि क्या होता है, कल सर ने एक एग्जांपल दिया था कि मतलब x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अंटिल एक्स माइनस जेड, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि ये अरिथमेटिक का है, पर वो लॉजिक यूज करना पड़ता है उसमें. तो वो सीरीज का x-x एक जगह पे आएगा, आपका 0 हो जाएगा वो. हाँ हाँ, लॉजिक तो देखो पूरी पेपर पे तो यूज करना ही होगा. आपका जो एबिलिटी है, इसलिए इट इज अ एबिलिटी पेपर, इट इज नॉट अबाउट एनी फॉर्मूला बेस्ड पेपर. तो लॉजिक तो आपको यूज करना ही होगा. लेकिन लॉजिक यूज करने के लिए मेरा कहने का मतलब है, जो कॉमन परसेप्शन होता है ना, कॉमन परसेप्शन में ये होता है कि हम फॉर्मूला करके जाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर. इट इज नॉट इन दैट वे. अगर आपका मन में ऐसा है, इफ यू आर थिंकिंग इन दैट वे कि वी विल लर्न द फॉर्मूला एंड वी विल अप्लाई एंड गेट द आंसर, तो आप कोई भी पेपर को उठा लो, आपसे नहीं होगा. तो लैंग्वेज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, उनकी लैंग्वेज पे सब कुछ हिडन होता है चीजों का, कि हाउ टू इंटरप्रेट द थिंग्स द मोमेंट द इंटरप्रिटेशंस आर द करेक्ट. ये this you have to work on the language, you have to work on the language, because it is like an the language is a your personal thing, है ना. लॉजिक तो यू कैन डेवलप, लॉजिक तो डेवलप होता है, ठीक है, लॉजिक कैन बी डेवलप, बट द लैंग्वेज, मोमेंट द लैंग्वेज कैन नॉट बी डेवलप विद अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बिकॉज लैंग्वेज इज अ वेरी बिग थिंग, है ना. तो वो आपको डेवलप करना होगा डे बाय डे, रीडिंग गुड थिंग्स अबाउट इट, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका पेपर पे. तो कैलकुलेशन का अगर आपको दिमाग में थोड़ा सा भी इस तरह से है, इफ यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एनीवेयर दैट इज द कैलकुलेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर अस इन दिस पेपर, तो कैलकुलेशन विल नेवर बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, एंड इट विल नॉट बी एंड इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस. ठीक है, लॉजिक तो है ही, आपको बिना लॉजिक का यू हैव टू डू लॉट ऑफ द थिंग्स, देन अगर आपने लॉजिक नहीं अप्लाई किया तो आपको प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, आपको तो होगा ही होगा फिर. तो लॉजिक क्या मतलब, जैसा मानो फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट द लॉजिक, तो जैसे लॉजिक यू विल स्टार्ट रीडिंग अबाउट द थिंग्स व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द लॉजिक, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, योर माइंड विल रेजिस्ट.
लॉजिक मतलब जैसा मान के चलिए मैंने आपको ये बोला कि एक मशीन है, 10 मशीन है, ऐसा करते करते 10 मशीन है ना, और हर एक मशीन से दैट इज कॉइन्स निकलता है एक एक ग्राम का। हर एक मशीन, देयर आर 10 मशीन्स, एंड आउट ऑफ दिस 10 मशीन्स क्या है, दैट इज फ्रॉम ईच मशीन्स we can take out 1 gram coins. You can take out as many coins as possible. लेकिन out of these 10 machine, exactly one machine is a default machine, which gives me 2 gram weight. है ना? Which gives me how much? 2 gram weight coin. So a spring balance is given to you. Spring balance everybody has seen. क्या होता है? What is a spring balance? एक तो होता है आपका बीम बैलेंस। बीम बैलेंस क्या होता है? जैसे इस यू कीप द वेट दिस साइड, यू कीप द कमोडिटी दिस साइड, दैट इज नोन एज द स्प्रिंग बैलेंस। देन यू मस्ट हैव सीन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, दीज आर कॉमनली विजिबल नाउअडेज, है ना। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे क्या होता है, आप सीधा यू कीप द कमोडिटी, यू सी द रीडिंग। देन यू हैव अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? which has a scale attached and a spring attached. If we want to weigh things, we should attach the things to the spring, and with the help of gravity, the weight it will show. हाँ, मतलब क्या हो गया, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज पे समझा देता हूं। आपने न्यूज़पेपर वाले को देखा हुआ आजकल, पुराने न्यूज़पेपर लेने आते हैं जब, तो एक उस पे बैग पे वो सारा न्यूज़पेपर डाल देता है, फिर वो एक तरह से वेट कर देता है, फिर वो बोल देता है कि आपका 12 किलो हुआ, 14 किलो हुआ। कैसे बोलता है कि वहां पे ना वेट मेजर यहाँ पे होता है उसका, ठीक है। दैट इज नोन एज द स्प्रिंग बैलेंस। और आपने अगर लैब पे थोड़ा बहुत यूज किया होगा, अगर स्कूल डेज पे, तो वो बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। तो ये सब जानना जरूरी है स्प्रिंग बैलेंस यूज करके। और भी स्प्रिंग बैलेंस आपको कितना करना होगा, मिनिमम यूज करना होगा, तो फॉल्टी मशीन को निकालने के लिए। तो ये सब क्या होता है, जैसे क्वेश्चन क्या मैंने बोला, क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना। क्वेश्चन मैंने बोला आपके पास 10 मशीन है, 10 के 10 मशीन से एक एक ग्राम का कॉइन आ जाता है, दैट इज आउट ऑफ दीज 10 मशीन 1 ग्राम वेट कॉइन्स कम आउट। आउट ऑफ दीज 10 मशीन 1 इज अ डिफॉल्ट मशीन, दैट इज एक क्या है, डिफॉल्ट है, विच प्रोड्यूसेस एक्चुअली विच एक्चुअली गिव्स 2 ग्राम वेट कॉइन। नाउ यू हैव टू यूज अ स्प्रिंग बैलेंस, है ना, and you have to use the spring balance minimum number of times to find out the default machine. ये होता है लॉजिक। तो आपको सुनने में पहली बार लग रहा होगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वह क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, तो बट दीज आर नॉट एनी डिफिकल्ट थिंग्स। और या दुनिया में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो आप बिना लॉजिक यूज किए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द यूपीएससी, दिस इज द पार्ट ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी का यही है कि वो नहीं चाहते कि एक मतलब इस तरह से आ जाए, कोई कुछ फॉर्मूला अप्लाई करे, उस पेपर को क्लियर करे और आ जाए, नहीं, उस पे फंडामेंटल्स थोड़ी सी आना चाहिए, ठीक है, फंडामेंटल्स आना चाहिए उसको, देन यू शुड कम फॉर द पेपर। तो यही है उनकी रिक्वायरमेंट। उनकी रिक्वायरमेंट कोई ज्यादा तो है नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी वही पे रह गया। मेरा क्वेश्चन का अभी तक क्लैरिटी नहीं मिला मुझे कि अगर मुझे 80 क्वेश्चन नहीं करना है, आई डोंट हैव टू सॉल्व ऑल द 80 क्वेश्चन, आई हैव टू जस्ट क्वालिफाई फॉर दिस पेपर विच इज अराउंड 66.67, मतलब 67 मार्क्स आई हैव टू गेट आउट ऑफ द 200। तो फिर भी क्या ऐसा हो गया है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि वी आर स्टिल अनएबल टू, एंड वेरी गुड स्टूडेंट्स आर अनएबल टू क्वालिफाई। तो ऐसा क्या हो गया? लैक ऑफ प्रैक्टिस। वो तो आप सुधार लेंगे, आपको जब पता ही है प्रॉब्लम, जब आपको प्रॉब्लम पता ही है आप सुधार लेंगे, उसमें क्या है। टू बी अ करेक्ट आंसर। हाँ, ये तो एक लेंदी क्या सॉल्विंग प्रोसेस की क्वेश्चन की, थॉट प्रोसेस पे टाइम लग सकता है, लेकिन सॉल्विंग तो 30 सेकंड पे हो जाता है, 30-45 सेकंड पे, 30-45 सेकंड्स पे यू कैन फाइंड आउट। तो आपके पास है भी तो 3-3 मिनट का एक क्वेश्चन में, 3 मिनट के हिसाब से आप देखेंगे तो 2 मिनट आप पढ़िए, नहीं
2 मिनट 3 मिनट हर क्वेश्चन थोड़ी करना है। आप कहाँ हमें वहां पे 200 आउट ऑफ 200 लेना है? Not the stableman at the exam. हैं? Not the stableman at the exam. नॉट स्टेबल, वो तो आप कर लेंगे, वो तो आपको प्रॉब्लम पता है, यू विल डू सम योगा बिफोर द एग्जाम, स्टेबल हो ही जाएगा। इंडिया में इतनी मतलब इट्स सच अ ग्रेट कंट्री जहां पे सब कुछ का वो है, तो उस पे वो तो प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हर चीज पे प्रॉब्लम होगा फिर, इफ यू आर नॉट स्टेबल ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन और यू आर अ फ्लिकरी माइंडेड, तो वो हर टॉपिक हर सब्जेक्ट पे प्रॉब्लम आएगा। ये थोड़ी कि इस पे कोई प्रॉब्लम आएगा। जीएस का अच्छा रहता है, उसका प्रेशर भी होता होगा। हाँ, मतलब जीएस का पेपर के ऊपर भी होता ही है, क्योंकि पहला जीएस का पेपर अच्छा हो गया तो फिर लगता है कि मेन तो ही कट ऑफ निकालेगा मुझे, है ना, मेरा कट ऑफ तो ही निकालेगा। बहुतों को ये भी लगता है कि सेकंड हाफ में तो जा तो रहे बॉर्डर पे, लेकिन वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वो क्वालिफाई डिसाइड कर देगा। आपको बहुत सारे मैसेज में दिखा दूंगा जिसकी 90 स्कोर है जीएस पेपर 1 में, लेकिन वो बॉर्डर लाइन पे एंड हो गया 61 62 इस तरह से। मुझे इसलिए बताना हो रहा है क्योंकि थोड़ी बहुत मैं चाहता हूं कि आप भी, दैट इज यू ऑल्सो वर्कआउट अकॉर्डिंगली, है ना। क्वेश्चन तो इसलिए समझ में नहीं आता, मैं बता देता हूं, दैट्स ऑल्सो, क्योंकि ना वो ऐसा नहीं बोलेगा कि डायरेक्टली एवरेज निकाल दो। वो क्या बोलेगा, एवरेज को परसेंटेजेस का जोड़ देगा, एसआई को रेशियो के साथ जोड़ देगा, इस तरह से दे क्लब द टॉपिक। क्यों क्लबिंग क्यों होता है टॉपिक का, क्यों क्लब होता है टॉपिक का? नहीं, आपके पास एक तो एप्टीट्यूड की बात है ही, प्लस आप ये सोचो ना कि लिमिटेड क्वेश्चन दे हैव टू आस्क, तो ये तो नहीं कि हर टॉपिक के एक क्वेश्चन वो करते जाए, तो क्लब तो करेगा ही करेगा, वो तो डेफिनेट है, दे विल क्लब द थिंग्स, ठीक है। क्योंकि ये पेपर इसलिए आप लोगों को हमेशा ही डिफिकल्ट लगेगा, मैं बता देता हूं आपको। आपने अगर 10th तक ही दैट इज द मैथ्स किया होगा तो आपको हमेशा ही डिफिकल्ट लग सकता है, और उस पर आपको वर्क करना है, क्योंकि उस पर ना अलजेब्रा का पोर्शन बढ़ चुका है 2020 ऑनवर्ड्स। ये जो है ना, ये पोर्शन पे वो ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। पहले क्या होता था अरिथमेटिक पे, तो अरिथमेटिक जब होता था तब इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, है ना, अरिथमेटिक मींस यू कैन अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट। अब क्या होता है, जो जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं ना, जो मानो दे आर वेरी गुड स्टूडेंट, दे हैव टेकन आउट द 3 times द प्री आल्सो, बट कुडंट क्लियर इन 2023 बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, ये अलजेब्रा के पोर्शन। अब अलजेब्रा क्या होता है आपको टॉपिक पता ही चल रहा है, अलजेब्रा क्या होता है, व्हाट इज अलजेब्रा, दीज आर द टॉपिक्स इन द अलजेब्रा। तो क्या दीज आर, तो यू अंडरस्टैंड व्हाई, क्यों इस पे डिफिकल्टी क्यों होता है हमें एज अ स्टूडेंट को क्यों इस पार्ट को डिफिकल्टी लगता है। कनेक्टिविटी छूट जाती है 10th के बाद 5-6 साल का गैप है, किसी ने डायरेक्ट के हार्ड बैकग्राउंड में दिया है। तो ये तो सबके लिए बैकग्राउंड, सब बैकग्राउंड के लिए है, क्योंकि आप अगर सोचेंगे वो उतना बायस तो है नहीं। नहीं, आपने पूछा ना क्यों गैप हाँ, अलजेब्रा के क्वेश्चन में, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है ना। जेन्युइन स्टूडेंट जो 3 बार प्री दे रखा है, उनका भी तो किया इस बार। उन्होंने वो क्वेश्चंस को चूज नहीं करना चाहिए, जैसे आप कहते हो कि 60 क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो फॉर एग्जांपल आप एलआर करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, में 10 12 पे 12 आपसे होगा नहीं, 12 के 12 क्वेश्चन, क्योंकि उतना प्रैक्टिस करने का आपके पास समय नहीं होता है। कॉम्प्रिहेंशन में आपने सारा अगर कर दिए बाई चांस गलती से 20-22 आएगा ना कॉम्प्रिहेंशन में, हाँ, तो 27 में तो सब लेके सिलोजिज्म सब लेके होगा। हाँ, तो सारे के आपने कर दिया, अगर बाई चांस आपने 27 कर दिए तो आपको नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा, ये शर्त लगा लो आप, ठीक है। आपका क्या आएगा अल्टीमेटली नेगेटिव मार्किंग, तो उसमें भी आप 10-12 ही कर पाएंगे। तो आइडिया है इस पेपर को करने के एक तरीका होता है कि हर पार्ट से आपको क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, है ना, यू हैव टू पिक क्वेश्चन फ्रॉम एवरी पार्ट।
आप ये नहीं सोच के जाएंगे अरे ये पार्ट पे नहीं करेंगे, सिर्फ ये पार्ट पे, तो इस पार्ट पे सारे क्वेश्चंस थोड़ी आएंगे. Even they give you 10 questions in the arithmetic, but still you will not be able to solve all the 10 questions in the arithmetic because the focus is not totally on this paper. You can understand. आपका क्या हो जाएगा, इस पेपर पे अगर 10 क्वेश्चन आए तो 5-6 कर पाएंगे, बहुत अच्छा अगर आपने प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट है. फिर आपको इस पार्ट पे भी चलना होगा. अब ज्योमेट्री पे जो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाता है, उस पे आपको तो फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है. वो बोलता है कि क्या बोलता है, वो सिंपल सा बोलता है कि एक स्क्वायर है तो कितना डायगोनल होगा. एक स्क्वायर पे कितना डायगोनल होता है? 2 होता है. वो अगला क्या बोलेगा, स्क्वायर तो बोलेगा नहीं, वो क्या बोलेगा, हेक्सागन दे दिया आपको, है ना. क्या दे दिया, हेक्सागन क्या होता है, 6 साइड होता है, सबको पता होता है ना. 6 साइड हो गया तो एक 6 साइडेड पॉलीगन का मतलब हेक्सागन इज अ पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है, मल्टीपल साइड्स. ये जो आधा अधूरा नॉलेज से नहीं चल पाएगा इस पेपर पे. मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं, मतलब जस्ट टू आप वो हो जाओ कैसे करना होता है चीजों को, है ना. कितना अच्छा छोटा सा चीज पूछा मैंने. आपने बचपन से किया होगा व्हाट इज अ पॉलीगन, बार बार किया होगा व्हाट इज अ पॉलीगन. अब मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज अ पॉलीगन, एक्सप्लेन मी. लेमन लैंग्वेज पे, ज्यादा टेक्निकलिटीज मत बताओ क्योंकि मुझे भी नहीं पता इतना, है ना. व्हाट इज अ पॉलीगन. हाँ तो ये पॉलीगन है मतलब, ये पॉलीगन है कि नहीं. नहीं है, क्यों ऐसा क्यों है. हाँ किसी ने कुछ और भी बोल रहा था, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए तो क्लोज्ड कर दिया. तो आपको मतलब मैं जस्ट समझा रहा हूं चीजों को कैसे करना है चीजों को, ठीक है. ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया. तो सर्कल पॉलीगन है कि नहीं है, नहीं है ना. है 90 डिग्री एंगल क्या होता है, सर्कल पॉलीगन नहीं है. है वो क्या, वो तो मल्टी डायमेंशनल है, वो क्लोज्ड फिगर भी है, उसका एन नंबर ऑफ साइड्स भी है. तो सर्कल तो एक पॉलीगन होगा, उसका एरिया भी कैलकुलेट हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है. तो सर्कल इज अ पॉलीगन. यहां से आपको समझना होगा चीजों को. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आपको जितना पता है ठीक है, लेकिन ये रेजिस्ट करेगा, माइंड हमेशा रेजिस्ट करेगा. जब मैं ये सब बताऊंगा आपको कि सर्कल इज अ पॉलीगन, पहले रेजिस्ट कर जाएगा क्योंकि कंडीशन वैसा हो रखा है ना. कंडीशनिंग भी तो वैसे ही हो रखा है कि आपने इस सब बारे में सोचा नहीं होगा. जैसा मैं सिंपल से एग्जाम्पल पूछूं आपसे, हाँ एकदम सिंपल से, आप सोच के बताना, तुरंत मत बताना. डोंट बी इंपल्सिव व्हाइल आंसरिंग इन द क्लास, ठीक है. व्हाट इज अ डायगोनल. नहीं नहीं, आप थोड़ा सोचिए, 1 मिनट, आपको 2.5 मिनट की जगह 1 मिनट दे रहा हो. व्हाट इज द डायगोनल, और मुझे फिर समझाना होगा आपको लेमन लैंग्वेज पे. हिंदी में बोलिए, इंग्लिश पे भी बोलेंगे तो इट शुड बी अ क्लियर इजी इंग्लिश. अब एज क्या हो गया फिर, पॉइंट्स. तो मतलब अगर हेक्सागन ड्रॉ किया मैंने, अगर हेक्सागन ड्रॉ किया मैंने तो कौन से ABCD लिख दिया मैंने, ठीक है. आपको बोलिए ई, दिस इज ई, दिस इज एफ, बताओ आप कौन सा ज्वाइन करूं मैं. AD ज्वाइन करो. ये एक वो है डायगोनल है, फिर लाइन विच डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स. नहीं आप बताओ ना कौन सा डायगोनल है यहां से, है ए और सी. FC की AC. अच्छा FC, ये नहीं मतलब, अच्छा. एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल FC हो गया, फिर BE. ये और बस 3 ही है.
और भी है तो आप बताओ। एसी, एसी, ए ई ई ई सी, एफ बी, ये भी हो जाएगा फिर, बी डी, ये भी हो जाएगा। दीज आर ऑल डायगनल्स, दीज नहीं, दीज आर ऑल डायगनल्स, यू आर करेक्ट। तो डायगनल का मतलब ही नहीं पता, इसलिए तो आपको हंसी आ रहा है ना। आप आज हंसोगे, वो उस दिन हंसेगा जिस दिन पेपर देने जाओगे, ठीक है। और आप रेजिस्ट करोगे, वो आपको डबल रेजिस्ट करेगा। डायगनल का मतलब क्या हो गया? डायगनल का मतलब हो गया ज्वाइनिंग एनी टू नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ द डायगनल। आप समझ रहे हो क्या, वो किस लेवल पे क्वेश्चन को पूछा जाता है? इस पे कोई लगेगा चीजें, हाँ ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन थिंग्स वी विल लर्न, बट उसको पहले बेस तो अच्छा होना चाहिए। यही नहीं पता क्या डायगनल क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायगनल, तो क्या लगाएंगे वहां पे? आप क्या करेंगे? आप तो बोल देंगे कि इस पे तीन ही है, एक हेक्सागन का। उन्होंने पूछा था ऑक्टागन के बारे में। इफ यू सी द क्वेश्चन पेपर, ऑक्टागन के पूरे बारे में, ऑक्टागन में तो क्या होता है? 8 साइडेड फिगर। ड्रॉ नहीं कर सकते आप। ड्रॉ करके, इसको तो मैंने जस्ट एन एग्जांपल, आई हैव टेकन द हेक्सागन बाय पेंटागन, बट आप ड्रॉ करके नहीं फाइंड आउट कर सकते। ड्रॉ कर भी लिए, अगर आपको यही नहीं पता व्हाट इज अ डायगोनल, तो क्या करेंगे ड्रॉ वहां पे? आप ये तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, बहुत तो कोई एफ बी ज्वाइन ही नहीं करेगा, बहुत कोई ए ही ज्वाइन नहीं करेंगे। Getting the idea? So this exam is not all about your formula. Its exam is the basic learning. आपकी बेसिक्स, आप यहां पे क्यों हो? क्योंकि बेसिक्स को आपको रिवाइज करना है, इसलिए आपको क्या करना है? बेसिक्स को रिवाइज करना है। Now you consider like a very like, new student who is very weak in math. So what will be your advice or prerequisite before attending the classes? The base अगर आप कह रहे हो कि base is the primary thing. प्राइमरी, ये तो, ये मानो आप लिख लो, इट इज अ मैंडेटरी फैक्ट कि हमें पूरी टाइम क्लास पे बेस के ऊपर डिस्कशन करना होगा। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बेस। जब हम बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तब माइंड हमेशा रेजिस्ट करेगा। क्यों करेगा रेजिस्ट? वो भी एक है, क्योंकि न्यू थिंग्स को हमेशा आप बोलेंगे हमने तो कभी सुना ही नहीं, सर्कल भी एक पॉलीगन होता है, तो आप तो रेजिस्ट करोगे ही करोगे हमेशा। माइंड विल रेजिस्ट, है ना? करेगा कि नहीं? इट विल रेजिस्ट न्यू थिंग्स, कभी भी वो इजिली नहीं लेगा। माइंड है अल्टीमेटली। वे आउट क्या है? वे आउट एक आप बता देना, या फिर एक एसओपी बता दो कि आप क्लास को आने से पहले ये बेसिक आप तब भी नहीं कर पाओगे। सर करेंगे ना आप, दो चैलेंज तो दोस्त ये चैलेंज की बात नहीं है। आप इतना तो करेंगे जितना क्लास पे करेंगे, उसको अच्छे से रिवाइज तो करेंगे, है? नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। अरे मैं बता रहा हूं ना, आपको क्या लग रहा है मैं एक दिन में पढ़ा रहा हूं? आज आया हूं ना यहाँ। आप क्या क्या नहीं करोगे मैं बता देता हूं, और वो अगर आपने डिफाई कर दिए तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा फिर। आप क्या नहीं करोगे? आपको नया चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे आप किसी भी हाल पे, ठीक है? नहीं करोगे, ये तो है ही। हाँ, सेकेंड, आपको बोला जाएगा कि वॉट एवर वी हैव डन फॉर टूडे, you will revise and come, and if you first 15 or 20 minutes will discuss about your problem, या आपको हो सकता है कि over the period of 2.5 hours पे जितना होगा, आपको पूरा पूरा नहीं भी आया होगा चीजों को, तो आप जब घर जाएंगे you will take the analysis, है ना? और एंड देन यू हैव टू कम आउट विथ योर डाउट्स नेक्स्ट डे। जब मैं नेक्स्ट डे 15 मिनट्स के लिए बोलता हूं, किसी के पास डाउट नहीं होता है, मतलब डाउट ना होने का दो ही कारण होता है। क्या क्या होता है? दो कारण। एक तो आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, है ना? आज सेकंड, पढ़ाई नहीं, देखा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। सबसे द बिगेस्ट कल्प्रेट इज द टाइम, टाइम ही नहीं मिला। तो जब आपके पास टाइम नहीं है, तो उसके पास कहां टाइम है? उसके पास भी टाइम नहीं है, एज सिंपल एज दैट।
है क्या? यूपीएससी के पास भी इतना टाइम नहीं है. यू आर नॉट देयर तो somebody else will come. तो टाइम तो उसके पास भी नहीं है, आपके पास नहीं है. तो ये तो नहीं करोगे आप, रिवाइज तो करोगे ही नहीं है. जब मैं बोलूं कि चलो आज तो फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे 2 days यू आर गेटिंग दी ऑफ, तो आपको बोला जाएगा कि आप ना क्लब करना 3 दिन का जो भी हम लोग किया, 5 दिन का हम लोग जो भी किया उसको थोड़ा सा 2 घंटा रिवाइज करना, है ना? वो भी नहीं करोगे आप, तो कैसे वो करोगे? ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है. जो बोला जाएगा वो तो करोगे नहीं, करोगे? तभी तो एप्टीट्यूड डेवलप होगा. एप्टीट्यूड का डेफिनेशन है कि एबिलिटी टू नहीं तो यू हैव टू वर्क अलोंग विथ मी. आई कैन ओनली गाइड यू. आई एम नॉट एनीथिंग कि मुझे बहुत कुछ आता है तो मैं आपको समझाने बैठ गया यहाँ पे. मुझे उतना आता है कि यूपीएससी की कितना रिक्वायरमेंट है, उतना ही मुझे आता है, उतना ही मुझे गाइड करना है. आई एम जस्ट अ मीडिएटर बिटवीन द बोर्ड एंड यू. वो मतलब कर भी आप भी लोगे, यू नो ईच एंड एवरी टॉपिक. ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं पता है इस पे से, है ना? अगर कुछ नहीं पता है तो इस पे ये भी बुक्स पे अवेलेबल है. बट दी प्रॉब्लम अराइजेस ओवर हियर कि आपके पास ना टाइम कम होता है. आप इस क्लास पे इसलिए हो कि उस टाइम को कैसे चैनलाइज किया जाए, हाउ टू चैनलाइज द टाइम, हाउ टू चैनलाइज योर माइंड, हाउ टू डेवलप द लॉजिक, इसलिए हो आप एग्जैक्टली इन दिस क्लास. अदरवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक यू नो है. गिवन 2 years टाइम, अगर आप कंसिस्टेंसी सही में मेंटेन करोगे तो आप खुद ही कर लोगे सारा चीजें. कंसिस्टेंसी मेंटेन तो करना ही होगा आपको. तो 2 साल आपके पास समय नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक पेपर नहीं है आपके पास, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए. तो दैट्स व्हाई यू आर इन द क्लास, कि आपको ये चीजें थोड़ा सा कंसाइज वे पे एग्जैक्टली यूपीएससी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, है ना? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. जैसा आप अगर सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक कि आई कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, तो मैं बता रहा हूं फॉर्मूला से होगा नहीं आपका. आप सोचोगे कि मुझे बहुत अच्छा कैलकुलेशंस आना चाहिए तभी जाके इस पेपर की क्वालिफाई होगा. कैलकुलेशंस इतना भी नहीं चाहिए. जो कैलकुलेशंस चाहिए ऑलवेज वी कैन मैनेज दोस टाइप ऑफ द कैलकुलेशंस. इट इज नॉट अबाउट द कैलकुलेटिव टाइप ऑफ द पेपर. एक तो बचपन में कंडीशनिंग भी हमारा इस तरह से होता है कि बोला जाता है कि मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स कैलकुलेशन है, तो वो कंडीशनिंग को मैं इतना जल्दी तो नहीं हटा सकता, मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है. लेकिन मैं दोनों चीज बोल देता हूं कि हमारे पास जो मैथ्स है ये कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है. हमारे पास जो मैथ्स है ये स्टेप वाइज नहीं है कि आपको डिफिकल्ट लगेगा. हाँ, इस पे जो है कि यू हैव टू इंटरप्रेट एवरी स्टेप. अगर आपने इंटरप्रिटेशन में कहीं पे भी एट एनी पॉइंट यू लूज द इंटरप्रिटेशन पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे चीजों को. क्लियर? आइडिया इज क्लियर? तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि कैलकुलेशंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट द कैलकुलेशन. तो मान लेते हैं कि अगर जैसा बोले विन्निकुलम, क्या होता है ये, क्या होता है ये तो आपने सुना होगा, ये तो सुना होगा. कहां तक सुने आप, कहां तक नहीं सुने? विच पार्ट यू हैवंट हर्ड? बी नहीं सुने होंगे, बी तो सुना ही होगा. है बॉडमस तो एवरीबॉडी. तो मैं बोला ना थोड़ा बहुत हर चीज पे एक्स्ट्रा आपको आएगा आपके पास. बट दे विल नॉट आस्क यू द डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बॉडमस रूल, है ना? तो ये जो वी होता है, ये इसको बोला जाता है विन्निकुलम, विच इज डिनोटेड विथ अ बार साइन, विच इज डिनोटेड विथ अ बार साइन. और ये जो बी होता है, दिस इज गिवन इन द ब्रैकेट्स फॉर्म. ब्रैकेट्स क्या होता है, इस तरह से होता है आपका, ब्रैकेट्स इस तरह से होता है. तो जैसा सर्कुलर ब्रैकेट, फिर क्या होता है कर्ली ब्रैकेट्स, फिर बॉक्स ब्रैकेट. ऑर्डर ऑफ द सिंप्लीफिकेशन यही होता है. ठीक है ना? पता होगा आपको, सब कोई सब कुछ पता है. ओ का मतलब क्या हो गया, ऑफ. हाँ, ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, इट इज रिप्लेस्ड विथ अ ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन. जैसा मान लेते हैं हमें बोला जाता है कि 50% ऑफ 100 निकालना है.
यही बोला जाता है ना लैंग्वेज वाइज 50% ऑफ 100 बोला जाता है। तो 50% ऑफ 100 का मतलब कितना हो जाएगा? 50/100। ऑफ को हम लोग क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लीकेशन से, इंटू 100 लिख दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा? 50। तो इसलिए ऑफ की हमें रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमें ऑफ की रिक्वायरमेंट है। जहां जहां ऑफ होता है वहां क्या करते हैं? वी रिप्लेस्ड विद अ ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर 4 ही होता है, ओनली वी हैव द 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर, विच आर द 4 ऑपरेटर्स? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। ये 4 जिसको आ जाएगा उसके लिए कभी कैलकुलेशन विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। फिर क्या होता है? डी क्या होता है? डिवीजन। फिर एम क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। ए क्या होता है? एडिशन। एस क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। दिस इज द थिंग वी हैव। तो बॉडमस रूल की क्यों जरूरत है? व्हाई द बॉडमस रूल? दे डोंट आस्क यू द डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बॉडमस रूल। क्यों जरूरत है? जब आपकी इंटरमीडिएट सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे, तब अगर इस रूल को नहीं फॉलो करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी अ केस दैट इज यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। इंटरमीडिएट सिंप्लीफिकेशन तो करना होता है, तो जब जब आप ये नहीं फॉलो करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम्स बाय चांस यू विल गेट योर आंसर्स करेक्ट ऑल्सो, है ना? तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट द आंसर्स इनकरेक्ट इफ यू डोंट फॉलो द बॉडमस रूल। तो डायरेक्टली दे डोंट आस्क यू द थिंग्स अबाउट द बॉडमस रूल, ठीक है? डायरेक्टली दे डोंट आस्क यू। विनिकुलम को हमेशा बार्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब पहले बार सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट्स के पार्ट सॉल्व होगा, देन द ब्रैकेट पार्ट्स ऑफ द ब्रैकेट्स विल गेट सॉल्व्ड, ठीक है? बार कब यूज होता है, कुछ आइडिया है आपको? किसी ने कुछ वो, हाँ, रिपीटेशन कब होता है? We will discussing. Don't, when I'm asking any question, I'm just trying to discuss the things with you to make it as simple as possible. हाँ, क्या होता है? After decimal. हाँ, जैसा मान लेते, जैसा is correct, जैसा 0.33333 हो गया, तो ये क्या हो गया? 0.3 बार। भाई इसको क्या लिख सकते? 1/3 लिख सकते। तो 1/3 इज अ रैशनल नंबर, है ना? 1/3 इज व्हाट? रैशनल। क्या होता है रैशनल नंबर? ये हम लोग वी विल डिस्कस इन द डिटेल फॉर्म, जस्ट इन द, आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया व्हाट यू नीड टू नो एग्जैक्टली बिफोर प्रिपेयरिंग दिस एग्जाम, है ना? तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये जो बार की बात आया तो हम लोग बोल रहे कि बार इस तरह से लिखते हैं, विच कैन बी रिटन एज, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 1/3। अब 1/3 इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर होता क्या है? मतलब नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? बस अभी मैंने पूछा था ना आपसे एक क्वेश्चन कि फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, कि दोनों हो सकते हैं, ठीक है? फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि फ्रैक्शन किसी ने डिफाइन भी किया था ना, पार्ट होता है, टोटल का एक पार्ट होता है, आउट ऑफ द टोटल इट इज द पार्ट, है ना? व्हेन इट इज अ पार्ट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट हैज टू बी एग्जिस्ट, फर्स्ट उसको एग्जिस्ट करना जरूरी है, then only you can take out the part, तो fraction is always positive। but जो rational number होता है, जैसा 1/3 हो गया, ये both positive negative दोनों हो सकते हैं, it can be both positive as well as the negative, ठीक है? तो ये मतलब आपको इस तरह से सीखना है चीजों को कि आपको डिफरेंस क्लियर कट पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने वर्ड फ्रैक्शन दे दिया इन द लैंग्वेज, तो दे विल नेवर यूज द थिंग कि यू कैन, अगर वहां पे मानो ऑप्शन में कुछ नेगेटिव भी दे रखा है, if the word in the question it is given the fraction and the option is given negative, so you will simply deny that negative option because a fraction can never be negative, ठीक है? जब फ्रैक्शन देगा, when the word will be given fraction, you have to always take it as the पॉजिटिव, ऑलवेज वो पॉजिटिव ही होगा, उस पर कोई मेंशन नहीं होगा दैट इट इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव। बट इफ द रैशनल नंबर इज द गिवन, इफ द वर्ड रैशनल नंबर इज द गिवन, तो इट विल बी क्लियरली मेंशन्ड वेदर इट हैज टू बी पॉजिटिव और द नेगेटिव, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड आउट। गेटिंग, दीज आर द स्मॉल डिफरेंसेस यू हैव टू लर्न। एक ज्यादा टेक्निकल नहीं है चीजें, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स यू हैव डन, ठीक है? ये देख रखा आपने विनिकुलम के बेसिक फॉर्मूला करना है,
तो बेसिक फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए हमें? हमें बेसिक फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए? व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? जैसा हमें चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? अब क्या है, आई टेल यू वन थिंग, इन सबों की प्रूविंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेर एवर द प्रूविंग विल बी रिक्वायर्ड आई विल गिव यू द आइडिया, बट ये मत, मतलब हमें इतना नहीं चाहिए होता है ना कि इसको प्रूव करने लगे, इसको थोड़ा सा जानना होगा। इवन इवन इफ यू, इस पे ये भी किस पे यूज होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड इन दी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पे। तो 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? -2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर क्या हो गया, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये तो जनरल सबको पता ही है ना, ऑल दीज थिंग्स वी नो। ठीक है, बस इतना ही फॉर्मूला वी शुड नो। हाँ, जैसा और थोड़ा सा चाहिए तो ये थोड़ा सा होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कितना हो जाएगा आपका, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूला यू मस्ट हैव डन, इसी से हमारा सारा काम हो जाता है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। आइडिया इज क्लियर? तो हाउ, बिकॉज डायरेक्टली तो दे विल नॉट आस्क यू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, डायरेक्टली दे विल नॉट आस्क यू। तो व्हाट दे विल आस्क यू, हाउ दे विल आस्क यू, लेट अस सी। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी हैज रिटन दिस, सबने लिखा हुआ है, आउट ऑफ दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why it is important, later on we will discuss the things in the calculations, but ये हो गया basic, these things we should know। this is a cube minus b cube and this is a cube plus b cube। ठीक है, अब जैसे ये है क्वेश्चन है, मान लो दिस इज द कैलकुलेशन कम्स आउट एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि इस तरह से सॉल्व करे मल्टीप्लाई करके, पॉसिबल है। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू ऑब्जर्व लिटिल बिट। ये जो 0.64 है इसको लिख सकते हैं, 0.64 को लिख सकते हैं 2 इंटू 0.32। अब मेरा क्या हो गया, अब मेरा अगर देखा जाए तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, है ना, और ये कितना हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया मेरा, हो गया कि नहीं। अब मेरा क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव डन, कि ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो इन द एग्जामिनेशन में आपको इतना नहीं लिखना, आपको ये लिखना होगा इन द एग्जामिनेशन में 0.32 प्लस 0.68 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से द कैलकुलेशन इज दिस इज द वे इट इज डन। तो ये कितना होता है, अगर इसकी करेंगे तो कितना आएगा, 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1, तो आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर? तो इट इज नॉट दैट दे ऑल्सो डोंट वांट टू कैलकुलेट द थिंग्स इन दिस वे, वो भी नहीं चाहते कि आप एक स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करो, आप ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज करो। यू हैव टू इंक्रीज योर ऑब्जर्वेशंस इन एवरी क्वेश्चन। जितना आप ऑब्जर्व करने सीखोगे उतना ही आपके लिए वो चीजें आसान होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस क्लियर टू एवरीबडी, एनी डाउट? देखो, जस्ट टू शो यू दैट इज कैलकुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब देखो सिर्फ ऑब्जर्व करना है, हर बार नहीं है कि आई वी हैव टू बी अ कैलकुलेटर ओवर देयर। ये जो है 0.9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 0.45 लिख सकते हैं। ये लिख दिया तो हमारे पास क्या हो गया, दैट इज 2.45 का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ए बी, और ये कितना हो जाएगा 0.45 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा केस आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब कितना आ गया आपका 2.45 माइनस 0.45 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 स्क्वायर विच इज 4। आंसर हमेशा एक या दो लाइन पे आ जाते हैं, मैक्सिमम यू कैन यूज 3 लाइन्स इन केस, बट इससे ज्यादा नहीं लगते, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है, द क्वेश्चन दे आस्क यू टू ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट द थिंग्स। इट इज नॉट दैट यूज द पेन एंड पेपर एंड रैंडमली स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। क्लियर? आपको आइडिया आ रहा है कि कैसे कैलकुलेशंस को सोचना चाहिए, यू विल गेट मोर आइडिया। बताओ क्या होगा आंसर। सिक्सटीन बाई 9 की 4/3, 4/3 होगा। आंसर बोल रहे हो ना, 4/3। नहीं 16/9 भी ऑप्शन है, तो सिंपल वो भी आएगा, नहीं एक ही आएगा, 4/3 होगा। फिर से वही मैं बोल रहा हूं, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। आप देखो एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ बोल रहा है, ठीक है ना, तो x लिया तो x स्क्वायर हो गया। प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करना है, बाय द स्क्वायर ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। इसके क्या बोला है, x से नहीं, एक्स स्क्वायर की रेसिप्रोकल से डिवाइड करना है। मतलब इसकी स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, उसकी रेसिप्रोकल हो गया 1/x²। उससे डिवाइड करेंगे अगर, तो मेरा कितना आ रहा है 256/81 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, वेरी गुड, दैट इज ये क्या हो गया, ये x4 होगा कि क्या होगा, x⁴ होगा, ये होगा ना। x²/1 होल 1/x² करेंगे तो क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा। x4 कब आता है, जब ये कितना हो जाएगा 4/3 का होल 4, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। बस एक लाइन में आ जाएगा आपका आंसर। Most of the time we should spend on reading the question, multiply a fraction. तो if anybody looks at this figure, उनको पता चल जाता है कि 4th पावर पे आएगा। अब आप बोलोगे कि ये 256 का 4th पावर कैसे याद रखेंगे, तो वो तो टेबल हम लोग करेंगे क्लास पे, then you will understand more the thing. But I'm just giving you the idea how the calculation is done. How the calculation is done. It is not about doing the actual calculation. ये करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। यू थिंक कि टुडे वी विल लर्न इन द क्लास एंड नेक्स्ट डे वी विल ट्राई टू अप्लाई द थिंग्स। It is not practically possible in that way. It will take lot of the discussion to observe the things, how we can implement the things. So when lot of discussions will take place, then you automatically will be able to apply the part. ठीक है, इट इज नॉट एनी रॉकेट साइंस। डोंट थिंक कि कोई मैंने यहां पे कोई डाउट वो कर दिया, शॉर्टकट कर दिया, मुझे कुछ पता है एक्स्ट्रा, मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पता है, इतना ही पता है कि आई रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? तो ओके, वी विल स्टॉप ओवर देयर, ओवर हियर।